Hello my lovely students, welcome back to my channel. So this is Khushi and today we are going to start with unit 2 travels. Okay, उसमें first poem that is given travel plans हम आज के वीडियो में करेंगे. Okay, we have completed unit 1. In that 2 stories were there and 1 video also I have made on that. So unit 1 is completed and now we have started with unit 2. Okay, so let's start with now travel plans poem. Travel Plans is a very nice, very beautiful poem written by Bobby Katz. You all must have your books with you, but if you don't have your books, I'm sharing the page here. You can see the poem and learn with me. Okay, so now let's start with Travel Plans. First of all, let's read the poem once and then I will explain you the meaning of each and every stanza or line. Okay, so let's start with the poem here. Travel Plans. If you could go anywhere, where would you go? Deep in the jungle, deep in the snow, deep in the ocean to talk to a fish. If you could go anywhere that you could wish. If I could go anywhere, here's what I would do. I would pop in the pouch of a kind kangaroo. I would travel around for as long as I please and I would learn to say thank you in kangaroos. I would go through the hole of a needle-like thread. I would spin like a top on the point of my head. I would skate on an ice cube. I would swim in a glass. I would ride on a grasshopper if one should pass. And when I got tired of being so small, I would abracadabra myself to be tall. I would step over oceans. I would step over seas. I would cause a few shipwrecks if I had to sneeze. If I would pat a giraffe on the top of his head, I would find out for sure if the North Pole was red. And when I had seen all that I want to see, I hope I would know how to turn back into me. So this poem is written by Bobby Katz. Now let's understand the meaning of this beautiful poem. So coming to the first paragraph, if you could go anywhere, where would you go? Deep in the jungle, deep in the snow. So अगर आप कहीं पर भी जा सकते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? ओके, मान लो आपको कहीं पर भी जाया जा सकता है, आप कहीं पर भी जा सकते हो तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? डीप इन द जंगल, आप जंगलों के बीच जाना पसंद करोगे. डीप इन द स्नो, स्नो में जाना पसंद करोगे, जहाँ बहुत सारी स्नो एरियाज होती हैं, स्नो ही स्नो होती है, वहां जाना पसंद करोगे. डीप इन द ओशन टू टॉक टू अ फिश, आप कोई समुद्र में जाना चाहोगे जहाँ पे आप कोई फिश से बात करना चाहते हो. इफ यू कुड गो एनीवेयर दैट यू कुड विश, तो अगर आप कहीं पर भी जा सकते हो जहाँ पे भी आपका मन है तो आप कहाँ जाओगे? तो फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीट. सेकेंड पैराग्राफ, इफ आई कुड गो एनीवेयर, हियर्स व्हाट आई वुड डू. I would pop in the pouch of a kind kangaroo. I would travel around for as long as I please and I would learn to say thank you in kangaroos. So अगर मैं कहीं पर भी जाना चाह सकता हूँ तो सबसे पहले मैं एक कैंगरू के पाउच में पॉप करना चाहता हूँ. ओके, यहाँ पे साइड में राइट साइड में आपको एक फोटो दी है जहाँ पे कैंगरू है एंड वो पर्सन उसके पाउच में है. ओके, सो कैंगरू के हमेशा एक पाउच होता है जिसमें वो अपना बेबी रखता है. सो वो सबसे पहले चाहता है कि वो एक काइंड कैंगरू से मिले, वो एक ऐसे कैंगरू से मिले जिसके पाउच में जाके वो पॉप करे. ओके, आई वुड ट्रैवल अराउंड फॉर एज लॉन्ग एज आई प्लीज, तो मैं घूमना चाहता हूँ, बहुत घूमना चाहता हूँ जब तक मेरा मन नहीं भरे. एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरूज, सो मैं चाहता हूँ कि मैं थैंक यू बोलना सीखूं कैंगरूज में, मतलब कैंगरू की लैंग्वेज में मैं थैंक यू बोलना सीखूं. ओके, सो आवर सेकेंड पैराग्राफ इज ओवर. कमिंग टू आवर थर्ड पैरा, I would go through the hole of a needle-like thread. I would spin like a top on the point of my head. I would skate on an ice cube. I would swim in a glass. I would ride on a grasshopper if one should pass. So ये थर्ड जो पूरा स्टैंजा है, थर्ड पैराग्राफ आपको यहाँ पे गिवन है, थर्ड स्टैंजा आपकी पोएम का, ये फुल बेस्ड है. जब पोएट चाहता है, जब राइटर चाहता है वो टाइनी हो जाए, मतलब वो स्मॉल हो जाए. ओके, तो क्या क्या चीजें करेगा जब वो स्मॉल हो जाएगा? तो लेट्स सी
क्या क्या चीजें वो करना चाहता है जब वो एक छोटा बच्चा बन जाता है. ओके, आई वुड गो थ्रू द होल ऑफ अ नीडल लाइक थ्रेड. तो मैं इतना छोटा बनना चाहता हूँ कि मैं एक नीडल मतलब सुई, सो एक सुई में जैसे एक धागा जाता है इतनी सी जगह में, वहां से मैं जाना चाहता हूँ. नीडल में जैसे थ्रेड जाता है वहां से मैं जाना चाहता हूँ. तो मैं इतना छोटा बनना चाहता हूँ. आई वुड स्पिन लाइक अ टॉप ऑन द पॉइंट ऑफ माई हेड. सो टॉप होता है लट्टू जिससे बच्चे खेलते हैं, तो मैं टॉप की तरह घूमना चाहता हूँ. ओके, लट्टू की तरह घूमना चाहता हूँ. कैसे? अपने सिर के बल. ओके, सो अपना हेड जमीन पे रख के मैं टॉप की तरह गोल गोल घूमना चाहता हूँ. आई वुड स्केट ऑन एन आइस क्यूब. आई वुड स्विम इन अ ग्लास. अब आइस क्यूब क्या होती है? हम सबके रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रिज में आइस की ट्रे होगी जिसमें हम छोटा छोटा स्क्वायर के साइज की आइस क्यूब्स रखते हैं. तो वो चाहता है कि वो इतना छोटा है कि वो आइस क्यूब पे स्केट करे. ओके, आई वुड स्विम इन अ ग्लास. अब सबके घर में ग्लास होगा जिससे हम लोग पानी पीते हैं, तो वो चाहता है कि मैं उस ग्लास के अंदर स्विमिंग करूं. ओके, आई वुड राइड ऑन अ ग्रास हॉपर. मैं ग्रास हॉपर के ऊपर राइडिंग करूं. ओके, जैसे हॉर्स राइडिंग होती है, याक राइडिंग होती है, वैसे ही वो चाहता है कि वो एक ग्रास हॉपर के ऊपर राइडिंग करे. इफ वन शुड पास, तो अगर कोई ग्रास हॉपर जाएगा तो वो चाहता है कि वो उसके ऊपर बैठ के राइडिंग. टू आवर फोर्थ पैराग्राफ. And when I got tired of being so small, I would abracadabra myself to be tall. I would step over oceans, I would step over seas, I would cause a few shipwrecks if I had to sneeze. So अब वो ये जो फोर्थ पैराग्राफ है ये है टॉल होने का. तो थर्ड पैराग्राफ था जब पोएट चाहता है कि वो छोटा हो जाए. अब ये फोर्थ पैराग्राफ है जिसमें पोएट चाहता है कि वो बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए. सो एंड व्हेन आई गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग सो स्मॉल, मतलब जब मैं थक जाऊंगा, जब मैं टायर्ड हो जाऊंगा, थक जाऊंगा छोटा बन के, सो मैं क्या करूंगा? आई वुड एब्राकडाब्रा माई सेल्फ टू बी टॉल. सो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा एब्राकडाब्रा, एंड वो बोलते ही वो क्या चाहता है कि वो बहुत बड़ा बन जाए. ओके, मतलब एक टाइनी से वो बहुत बड़ा बन जाए. आई वुड स्टेप ओवर ओशंस, आई वुड स्टेप ओवर सीज. मैं ओशंस पे पैर रख सकता हूँ, मैं सीज के ऊपर पैर रख सकता हूँ. तो मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि मेरे जो लेग होंगे वो पूरा ओशन कवर कर ले, पूरा सी कवर कर ले. ओके, आई वुड कॉज अ फ्यू शिपरेक्स इफ आई हैड टू स्नीज. अगर अब मुझे स्नीज आए, मतलब एक छींक आए, तो क्या हो? शिप तबाह हो जाए, मतलब सारी शिप्स बिखर जाए, टूट जाए, ये सब हो जाए. मतलब उसकी एक छींक से वो इतना बड़ा, इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो अगर ओशंस पे जाता है तो ओशंस पे पैर रख सके. वो स्नीज करे तो शिप्स टूट जाए. ओके, सो बड़े होकर वो ये सब करना चाहता है. ओके, सो आवर फोर्थ पैराग्राफ इज फिनिश्ड. टू आवर लास्ट एंड द फिफ्थ पैराग्राफ, दैट इज आई वुड पैट अ जिराफ ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड. आई वुड फाइंड आउट फॉर श्योर इफ द नॉर्थ पोल वॉज रेड. And when I had seen all that I want to see, I hope I would know how to turn back into me. So वो क्या चाहता है? वो इतना बड़ा बन जाए कि वो एक जिराफ के हेड पे पैट करे. ओके, मतलब ऐसे हेड पे पैट करे. सो जिराफ बहुत टॉल होता है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट उसका हेड तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है. सो वो इतना लंबा होना चाहता है कि वो एक जिराफ को टच करके उसके हेड पे टैप करे. ओके, देन वो क्या चाहता है? आई वुड फाइंड आउट फॉर श्योर इफ द नॉर्थ पोल वॉज रेड. वो नॉर्थ पोल को ढूंढना चाहता है, एंड वो पता लगाना चाहता है कि नॉर्थ पोल क्या सच में रेड होता है. तो वो इतना बड़ा बनना चाहता है कि वो जल्दी से एक नॉर्थ पोल को ढूंढ ले. एंड वेन आई हैड सीन ऑल दैट आई वॉन्ट टू सी, जब मैं वो सब देख लूंगा जो मैं देखना चाहता हूँ, आई होप आई वुड नो हाउ टू टर्न बैक इन टू मी. तो जब मैं सब कुछ देख लूंगा जो मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं जानता हूँगा कैसे मैं वापस वो बन जाऊं जो मैं पहले से हूं. मतलब वो पहले छोटा बना, उसके बाद बड़ा बना, पर उसके बाद वो वापस से वो बन जाए जो वो असली में है. ओके, सो ये एक ब्यूटीफुल पोएम थी. जब पोएट सोचता है वो कहाँ कहाँ जाएगा, एंड अगर असली में वो ये सब जगह चले गया तो वो क्या क्या करेगा. ओके, सो दिस ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय बॉबी कैट्स, एंड द पोएम्स नेम इज ट्रैवल प्लान्स. So guys, we have completed here our beautiful poem, that is Travel Plans. I hope you all must have liked this video, liked this poem, and you all must have understood it. Okay, so here we have completed with our today's video. Do not forget to like, share, subscribe and comment. Do encourage me with your lovely comments, and
The exercises of this chapter I will upload soon. So do watch that and do fill out in your books. Okay. And if you haven't done Unit 1, then Unit 1, all the chapters, every page, every exercise, I have made a video on that. So you can go to my channel page and you can find out the video and you can watch it from there. Okay. So for today, bye to all.